So hello to all. Today we will talk about the gallbladder. Today we will talk about the gallbladder. So what is the gallbladder? The gallbladder is a muscular thin plastic bag-like structure which is present at gallbladder fossa, present on inferior surface of the liver. ठीक है. So what is the gallbladder? So basically अगर अपन बात करें तो this is our liver and this is the inferior surface of the liver. So here there is a fossa in which the gallbladder is present. ठीक है. So this is the gallbladder. ठीक है. So इसकी सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं. What are the properties? प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अपन बात करें तो what is the color? So it is sea green in color. What is the shape? So shape is pyriform. What is the meaning of pyriform? It is pear shape. What is the meaning of pyriform? It is pear shape. What is the storage capacity? So the storage capacity is about 30 to 50 ml for the. क्या स्टोर करता है? It stores the bile. Stores the bile. Okay. What is the length and width? So it is 7 to 10 centimeter length and 3 centimeter is width. There is no need to learn this. Okay. Okay. And what is the function? What is the function of gallbladder? The function of gallbladder is the storage of bile and concentration of bile. How much time it will concentrate the bile? So it is the 5 to 10 times. 5 to 10 times it will concentrate the bile. ठीक है. अब बेसिकली देख लेते हैं अपन गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर को. What is the structure of gall bladder? So the structure of gallbladder, it is divided into three parts: fundus, body, and neck. ठीक है. So basically, it is a peritoneal structure. What is it? It is a peritoneal structure. ठीक है. So it is a peritoneal structure. ठीक है. Where it is present? So present in right hypochondrial region. ये अपन जानते हैं ना कि एब्डोमेन को अपन किसने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 9 रीजन्स में. ठीक है. अपनी स्टडी के लिए ये आपका हो गया एपिगैस्ट्रियम, ये हो गया हाइपोगैस्ट्रियम, ये हो गया अम्लाइकस, ये हो गया लेफ्ट लंबर, ये हो गया राइट लंबर, ये हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हो गया राइट सॉरी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये हो गया राइट iliac region and this is the left iliac region. This is how we divide the abdomen into 10 parts. Okay. Oh, sorry, 9 parts. In which it is present in the right hypochondrial region. Okay, and it is the peritoneal structure. It is the
पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, मतलब इट इज अ इंट्रापेरिटोनियल वॉल। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द structure of the gallbladder, which is divided into three parts. Which is divided into three parts. So what are the parts? So the parts are, that is fundus. ठीक है, ये आपको कैसा दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है ना, तो इट इज द राउंडेड एंड पोर्शन ऑफ जीवी विच प्रोजेक्ट इनटू, कहाँ प्रोजेक्ट करेगा, ये आपका लिवर है ना, तो लिवर की इंफीरियर सरफेस में, विच प्रोजेक्ट इनटू द inferior surface of the liver. And what is the second part? So the second part is body. Second part is body. It is the largest part of gallbladder. ठीक है, एंड अगर अपन इसके कांटेक्ट की बात करें तो इसका नीचे की तरफ किससे कांटेक्ट होता है, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलम, किससे, ट्रांसवर्स कॉलम। इसके ऊपर क्या होगा, ड्यूडेनम वाला पार्ट, तो ये प्रोक्सिमल ड्यूडेनम के कांटेक्ट में रहता है। इट इज कांटेक्ट विद द प्रोक्सिमल ड्यूडेनम एंड द ट्रांसवर्स कॉलम। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज द नेक। So the third part is the neck. So what is the largest part? Largest part is the body of the gallbladder. Third part is the neck. ठीक है, third part is the neck of the gallbladder. ठीक है, so it is the part where gallbladder narrow or taper. Why it will be narrow or taper? To continue with cystic duct. Cystic duct. What is cystic duct? The duct of the gallbladder from which bile will comes out. So this region is the neck. This is the neck region. What is this fold? And this is nothing else. It is a mucus fold, which is called the Hartmann pouch. What it is called? It is called Hartmann pouch. What is the significance of Hartmann pouch? So basically, we know that the gallbladder develop the stones. So the most common site for Hartmann pouch is the most common site for GV stone lodgement. भाई सबसे पहले अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप हो गया तो यहाँ पे आके इकट्ठे होने की संभावना है, मोस्ट कॉमन साइट है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इट इज द हार्टमैन पाउच विच इज द म्यूकोजल फोल्ड, इट इज द म्यूकोजल फोल्ड। ठीक है, नथिंग एल्स, इट इज द म्यूकोजल फोल्ड। अगर अपन इसकी थोड़ी बहुत अब अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, तो बेसिकली अपन अगर देखें एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखें तो सबसे बाहर क्या होता है साहब, सीरोसा। उसके अंदर क्या होता है साहब, सॉरी थोड़ी ड्राइंग खराब हो गई। सीरोसा के अंदर क्या होती है साहब, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। उसके अंदर क्या होती है साहब, सर्कुलर मसल लेयर। उसके अंदर क्या होती है साहब, सब म्यूकोजा। और उसके अंदर क्या होती है साहब, म्यूकोजा। देन अंदर उसके क्या है साहब, उसकी ल्यूमेन हो गई। यही है ना। अपन बात करते हैं गॉल ब्लैडर में कुछ चेंजेस है क्या, हाँ, तो अपन बात करते हैं गॉल ब्लैडर। अब बेसिकली गॉल ब्लैडर में जाने से पहले एक और चीज, म्यूकोजा के कितने पार्ट, तीन पार्ट। कौन कौन से, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, and one another is the muscularis mucosa. muscularis mucosa। तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है ना, गॉल ब्लैडर में क्या क्या नहीं मिलता है, एक तो सब म्यूकोजा एब्सेंट होती है, तो गॉल ब्लैडर में सब म्यूकोजा इज एब्सेंट, एंड म्यूकोजा तो प्रेजेंट है लेकिन म्यूकोजा में
मस्कुलरिस म्यूकोसा जो होता है that is absent in the gallbladder. So these are the two changes in the histology of the gallbladder. So what are the absent in the gallbladder? The submucosa and the muscularis mucosa is absent in the gallbladder. ठीक है, अब अपन बात करेंगे biliary tree की. What is this biliary tree? Bile निकलना और मंजिल पर पहुंचना. ठीक है साहब. तो मैंने बताया बाइल को स्टोर कौन करता है साहब? जीवी. जीवी का काम क्या है? स्टोरेज एंड concentration of the bile. It is a function of the GV. So where it is from? As simple, liver. Liver, bile is formed. And where it is reach? It reaches to D2. What is D2? D2 is the second part of the duodenum. What is duodenum? Duodenum is the part of the small intestine. So how it is carried from the how it is carried from the liver and how it is reaches to the gallbladder. So we will talk about some structure involved in this that are called the biliary tree. Structure involved in this are called biliary tree. तो सबसे कॉमन समझते हैं आप. ये अपना हो गया सब लिवर. लिवर में दो लोब है मेनली. लोब तो कहीं क्वाड्रेट लोब. ठीक है. तो इसको सेपरेट करने वाला कौन सा लिगामेंट? दैट इज द falciform ligament. What it is? It is the falciform ligament. So from here, two tube-like structure comes here. One is called left hepatic duct and one is called the right hepatic duct. इसके नीचे तुम्हारा कौन बैठा है? सब गॉल ब्लैडर बैठा है. ठीक है. अब ये दोनों डक्ट ये दोनों डक्ट आगे. हाँ, ये दोनों डक्ट तुम्हारी मिल गई. तो बोल दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट. And the region where it are formed, that is called hilar region, where the left and right hepatic duct meet to form the common hepatic duct. And what is the duct arise from the gallbladder? That is called the cystic duct. This is the reason why the gallbladder become narrow or taper. And cystic duct will combine with the common hepatic duct and form the CBD, that is called common bile. Where this is CBD will be formed? The CBD will open. So this is your duodenum. Suppose it is the second part of the duodenum. Basically four parts of the duodenum, na? Second part of duodenum. और we call it as proximal duodenum. मैंने बताया भी था अभी आपको इसका रिलेशन होता है proximal duodenum. ठीक है. अब इसके पास भैया एक स्ट्रक्चर है that is called the pancreas. pancreas की क्या है ये? pancreatic duct है साहब. pancreatic duct. main pancreatic duct. ठीक है. अब जो pancreatic duct है, अब ये जो है हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट है वो नीचे की तरफ डिसेंड होती जा रही है और होती जा रही है. ठीक है. अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ में मिलती है और यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. ये दोनों मिलके ये यहाँ पे ओपन हुई और ये यहाँ पे दोनों मिली और एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गई. दैट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर. एम्पुला ऑफ वेटर. And through the pore it is open, that is called the duodenal papilla.
और इनका कंट्रोल करने के लिए एक स्पिंक्टर लगा हुआ है था, उस स्पिंक्टर का नाम क्या है? स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई। ठीक है, तो सीबीडी हमारी किससे कंबाइंड हुई? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से। उन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक एम्पुला वेटर बनाया। वो किसमें खुला? सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में खुला। दैट इज द proximal part. We can also call it proximal part. And how, which structure control the opening? That is called the sphincter of Oddi. ठीक है, that is sphincter of Oddi. ठीक है, and what is it is sphincter of Oddi? It is a muscular valve, muscular valve. तो बाइल कहाँ कहाँ से चला देख लेते हैं। बाइल कहाँ से ही चला? बाइल चला लिवर से, यहाँ से गॉल ब्लैडर से आया, पेनक्रियाटिक डक्ट की सिक्रेशन हुए, इनमें कुछ एंगल भी बनता है, एम्बुला वेटर में आया और डूडेनम में आ गया। ठीक है सर, और खाना यहाँ से चल रहा है। अब अपन अगर बात करें ड्यूडेनल पेपिला की, तो इसकी एक लोकेशन है। इट इज 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस, डिस्टल टू पाइलोरस। अब ये तो आपको पता है ना, ये आपका स्टोमक, ये आपका ड्यूडेनम, तो ये इट इज योर पाइलोरस ना, तो उससे 8 से सेंटीमीटर डिस्टल होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द biliary tree. So I forgot some structures present in the gallbladder, so I will explain here. Okay, so we know that it is our gallbladder. It is our gallbladder. What it is? It is the Hartmann pouch. What is the Hartmann pouch? It is the mucosal fold. It is the mucosal fold. What is the significance of the Hartmann pouch? It is the most common site of the lodgement of the gallbladder stone. ठीक है, चलिए साहब, अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। अब ये आपकी क्या है? सिस्टिक डक्ट है। ये क्या है? अपनी सिस्टिक डक्ट है। यहाँ की जो म्यूकोसा होती है कुछ फोल्ड बना लेती है, 8 to 10 फोल्ड बना लेती है, 5 to 12 फोल्ड, क्रेसेंटिक फोल्ड। क्रेसेंटिक मतलब हाफ मून लाइक। ठीक है, फोल्ड बना लेती है। इनको अपन क्या बोल रहे हैं? स्पाइरल वाल्व ऑफ हिस्टर। अभी ट्रू वाल्व नहीं है, तो फिर भगवान ने दिया क्यों है? जब यहाँ से बाइल चला जाएगा तो डक्ट क्या होगी? क्लोज होगी ना, तो ये आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, तो इंटरलॉक कर जाते हैं ये। तो व्हेन द डक्ट क्लोज, व्हेन द डक्ट क्लोज, इंटरलॉक टू ईच अदर, इंटरलॉक टू ईच अदर। ठीक है, इंटरलॉक कर जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपसे पूछा जाए तो हाइपरट्रॉफिड म्यूकोसल फोल्ड है। क्या है ये? हाइपरट्रॉफिड म्यूकोसल फोल्ड। ठीक है, चलिए अगर अपन इसकी बात करें ब्लड सप्लाई की, गॉल ब्लैडर की, ये क्या हो गया आपका? सीबीडी। ये होगी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये आपकी होगी सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ आपकी सीलियक ट्रंक है, तो कहाँ पे? स्टोमक के ऊपर है जस्ट। मान लो आप सीलियक ट्रंक है, यहाँ से निकली हेपेटिक प्रॉपर, हेपेटिक प्रॉपर। अब उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो ये इसको सप्लाई देती है। लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है कौन सी? सिस्टिक आर्टरी।
कौन सी? सिस्टिक आर्टरी। तो सिस्टिक आर्टरी इसको सप्लाई देती है। तो सीलिक ट्रंक निकली, हेपेटिक प्रॉपर, उसके दो पार्ट, राइट हेपेटिक एंड लेफ्ट हेपेटिक। लेफ्ट हेपेटिक विल गिव राइज टू अ ब्रांच दैट इज कॉल्ड सिस्टिक आर्टरी दैट विल सप्लाई टू द गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब यहाँ पे एक हेपेटोबिलियरी ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी, ये जो ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल, तो ये आपका क्या हुआ? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये आपका लो इंफीरियरली क्या हुआ? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और ये आपकी बनी सिस्टिक आर्टरी। तो इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं कैलॉट्स ट्रायंगल। देखो तीनों सी 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 आ रहा है, कैलस ट्रायंगल। कैलस ट्रायंगल में तीन सी क्या है? कैलस ट्रायंगल में थ्री सी है। एक सी कॉमन हेपेटिक डक्ट, एक सी सिस्टिक आर्टरी, और तीसरा सी सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन, हाँ सॉरी, so there are three C common hepatic duct, cystic artery and the common hepatic duct, cystic duct and the cystic artery. These are the three C which are on the boundary of the Callos triangle. ठीक है। There is a lymph node present in this, that is called lymph node of Lund. Lymph node of Lund that is present in this Callos triangle. ठीक है। Surgical significance of this Callos triangle. ठीक है। Okay. Then we will what is the, this is the artery supply है ना। चलिए, and the venous drainage, वेरी सिंपल, सिस्टिक वेन होती है। अभी कहाँ पे ड्रेन करती है? डायरेक्ट ड्रेन, इट विल ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, इट विल डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन, इट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन। ओके। एंड द नर्व सप्लाई, so we will talk in the short, celiac plexus। ठीक है। एंड उसके बाद दो चीजें होंगी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में इसमें वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। What is the significance of vagus nerve? It will cause the contraction of the gallbladder that will release to the bile. But the main mechanism behind the contraction of bile is not the vagus nerve. The main mechanism is the cholecystokinin. ठीक है। क्या है मेन रीजन टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइल? दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन, काइनिन मतलब मूवमेंट कराने वाला, कोली मतलब गॉल ब्लैडर की मूवमेंट, सिस्टिक डक्ट की, सिस्टो मतलब सिस्टिक डक्ट की नहीं, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कहाँ से निकलता था? डूडोनम से चलते हैं महाराज, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं? गॉल ब्लैडर में, और वहां पे जाके उसकी वॉल को कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज दैट इज बाय द सिस्टिक नोड। What is the node? Cystic node. Okay. So this is the general introduction of the gallbladder. And in the lecture we will talk about the diseases of the gallbladder. ठीक है, thank you very much.